بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا ہوا؟ حیثم نے اس کی پھر سے بھیگتی آنکھوں کو دیکھتے کہا تھا۔ بونیاں نہیں مل رہی کہیں بھی، اس نے ہکلاتے ہوئے ڈرے سہمے خوفزدہ لہجے میں کہا تھا۔ مل جائے گی، زوشی چھت پر ہوگی یا ادھر ادھر ہوگی، کچھ نہیں ہوگا اسے۔ حیثم نے اس کی آنکھوں سے بہتے آنسوں کو صاف کرتے کہا تھا۔ آپ کو نہیں پتا حیثی، اسے وہ لے جائے گا۔ اس نے کہا تھا کہ وہ مار دے گی سب کو۔ زویشہ نے آپ ہچکیوں سے روتے کہا تھا۔ کون؟ کس نے کہا تھا؟ کیا ہوا؟ پوری بات بتاؤ۔ حیثم نے تذبذب سے پوچھا تھا، تبھی زویشہ اس کے لہجے پر ٹھٹکی تھی۔ گرم، میں نے حیثی کو سچ بتا دیا تو، اور وہ یقیناً یہی ہوگا۔ اور اگر اس نے حیثی کو بھی مار نہیں، زویشہ نے دل میں سوچا تھا، وہ بلا وہ بنیا کے لیے آتا۔ واٹ ربش یار زوشی، اس کے منہ سے بلے کا لفظ سن کر حیثم کا پارا ہائی ہوتا، مگر وہ اپنا غصہ پی گیا تھا، چاہ کر بھی کچھ کہنا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ اگر اس کے کہے گئے لفظوں سے اس کی بہن کو تکلیف ہوتی تو وہ یہ کبھی بھی برداشت نہیں کر پاتا۔ اس نے سوچ لیا تھا دل میں کہ اب اس کے ڈر کو کس طرح باہر لانا ہے، اس لیے اس نے گہرا سانس بھرا تھا اور اس کے لڑکتے آنسوں کو صاف کیا تھا۔ دیکھنا زوشی، بونیا ٹھیک ہوگی، گھر پر ہی ہوگی، آئی پرامس، مجھ پر یقین ہے نا؟ اس نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے کہا تھا، اور اس نے اس کے یقین کے سارے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ وہ بھی مسکرا دیا تھا۔ اب میرا بیٹا یہاں پڑھے گا، میں ایڈمیشن کی انفارمیشن لینے جا رہا ہوں، تم یار کو میں بس 10 منٹ تک آتا ہوں۔ حیثم نے اس کی طرف دیکھتے نرمی سے کہا تھا۔ حیثم، مجھے نہیں پڑھنا یا مجھے آپ سے ہی پڑھنا ہے، پلیز، میرا سانس بند ہو رہا ہے اتنے رش میں۔ آنکھوں میں سرخ ڈول لیے وہ بونیوں کو بھول نئی رات والی بات سے ڈرتے وہ پھر سے رونے کو تیار تھی۔ زوشی، حیثہ کی جان پہلے میں فری ہوتا تھا تو پڑھا دیتا تمہیں گھر پر، اب ایسا نہیں کر سکتا۔ بزنس، اسٹڈی، جاب، ان سب کو مینج کرنا مشکل ہے میرے لیے، اور اب تمہیں سٹرونگ بننا ہے۔ کب تک گھر میں رہو گی؟ فیس کرو سب کو۔ دیز آر ہیومن بینگس، انسان ہے سب یہاں، کوئی ایلین یا خلائی مخلوق نہیں۔ تم تب تک اپنے پزل باکس کو ٹائم دو، میں آتا ہوں۔ لہجہ حتی الامکان سخت بناتے کہا تھا، پھر اس کی طرف دیکھے بغیر وہاں سے چل دیا تھا۔ جانتا تھا روتی کو مزید دیکھے گا تو پل بھر میں فیصلہ بدل دے گا۔ ایک اس کے آنسو ہی تو نہیں برداشت تھے اس کو، مگر اب اسے اس کے خلاف تھوڑا سخت ہونا تھا، اس کے ڈر کو اس کے اندر سے قرید کر نکالنا تھا۔ میں ڈونا کے ساتھ 12 بجے گھر چلی جاؤں گی، مجھے کچھ کام ہے، فہد نے سینڈوچ کی بائٹ لیتے کہا تھا۔ اسمن گاڑی چلاتے شیشے میں سے پیچھے بیٹھی فہد کو بھمیں اچکا کر دیکھا تھا۔ سدھر جو فہد، کسی دن برا پھنسو گی، کوئی اور پروفیشن چوز نہیں کر سکتی کیا تم؟ اس نے ناگواری سے کہا تھا۔ نہیں، میرا پیشن ہے، یہ انسان سانس لینا چھوڑ سکتا ہے، مگر اپنا پیشن نہیں۔ جنون کے بنا بھی بھلا کوئی زندگی ہوئی؟ اس نے منہ میں باقی کا سینڈوچ ٹھروستے کہا تھا۔ یہ تمہارے ہاتھ پر کیا ہوا ہے؟ اس نے اس کے ہاتھ پر لگی بینڈیج دیکھتے کہا تھا۔ چوڑیاں، میری چوڑیاں پہن رہی تھی، برات کو بس لگ گئی۔ پہنتے پہنتے اشال نے فوری بات سنبھالتے کہا تھا۔ چوڑیاں اور فہد؟ ارسم دل کھول کر ہنسا تھا۔ تیرے کیوں طوطے اڑے ہوئے ہیں؟ کیا مردہ بندر بنا ہوا ہے؟ ارسم نے سارے عرصے میں چپ احاب کی طرف دیکھتے کہا تھا۔ شکل ہی ایسی ہے، سادہ بندر ہضم نہیں ہوتا، اوپر سے ہوا بھر لیا خود میں۔ فہد نے اس کے پھولے منہ کو دیکھتے لقمہ دیا تھا۔ کیوں اپنا کریئر داؤ پر لگانا چاہتی ہو FSC؟ احاب نے رخ منہ کر فہد کی طرف دیکھتے ماتھے پر بال لگتے لمبا سانس کھینچتے کہا تھا۔ نظروں میں صاف وارنے تھے کہ اب میرے خلاف کچھ بھی فضول گوئی کی تو رات والی ساری کارروائی بما مرچ مسالے سنا دوں گا۔ آپ مجھے بلیک میل کر رہے ہیں؟ فہد نے حیران کن لہجے میں کہا تھا۔ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ تم جیسے نکمی سپاہی کو بلیک یا وائٹ میل کرو، اس نے فوراً شوق لہجے میں کہا تھا۔ اچھا، لیو اٹ، بند کرو فضول بحث، یہ بتاؤ ہیکنگ کے لیے جگہ ڈیسائیڈ ہوئی؟ اشال نے ان دونوں کو مزید چونچ لانے سے منع کرتے پوچھا تھا۔ نہیں، ابھی فی الحال سوچا نہیں ہے، ارم ڈیسائیڈ کرے گا اس بار۔ ارسم نے گاڑی کا موڑ کاٹتے کہا تھا۔ اس کو ساتھ لے جانے کی ضرورت تو نہیں ہے، ہم چاروں بھی تو جا سکتے ہیں۔ اشال نے نفرت سے کہا تھا۔ دیکھو ایشو، ہم تمہاری غلط فہمی کی وجہ سے اپنے بچپن کی دوست کو نہیں چھوڑ سکتے۔ ارسم نے دو ٹوک لہجے میں کہا تھا۔ وہ غلط فہمی نہیں تھی، تم لوگوں کو اپنی بہن کی زندگی سے زیادہ وہ شخص عزیز ہے۔ مجھ سے نکاح کر کے مجھے محبت میں ڈاج دے کر وہ پرائی لڑکے کو ساتھ راتیں رنگین کرتا ہے، اور تم دونوں کو پھر بھی وہ سچا لگتا ہے۔ کہاں گئی تم لوگوں کی غیرت؟ کیوں نہیں نظر آتا میری زندگی پر ارحام طارق کے نام کا بدنما داغ؟ وہ رو دینے کو تھی۔
ईशू, इरहाम से निकाह तुम्हारी मर्जी पर ना था। अपनी मर्जी पर तुमने उससे मोहब्बत की, फिर उस पर धोखे का इल्जाम भी अपनी मर्जी से लगाकर उससे नफरत कर रही हो। इस सब में हमारी दोस्ती का कसूर। हमने तो नहीं कहा तुमसे कि हमारी दोस्ती की वजह से तुम उससे मोहब्बत करो, निकाह करो, नफरत करो। दोस्ती भी आराम से तुमने हमारे कहने पर नहीं की थी। क्या कभी हमने तुम्हें कहा कि प्लीज ईशू, अरहम हमारा दोस्त है, उससे दोस्ती कर लो? क्या हमने कभी कहा कि अरहम से मोहब्बत करो या फिर निकाह? तो तुम क्या चाहती हो कि हम तुम्हारी वजह से उसे छोड़ दें? हमारे लिए वो आज भी वैसा ही है, क्योंकि उसकी पाक दामनी की गवाही हम आंखें बंद करके भी दे सकते हैं। यह आपने सख्त लफ्ज में उस पर एक एक चीज बावर करवाते हुए कहा था। उसकी पाक दामनी मैंने अपनी आंखों से देखी थी और आंखों देखा जहर निकाल नहीं जाता था। ईशा ने बेचैनी से एहाब को देखते भर्राई आवाज में कहा था। गाड़ी यूनिवर्सिटी की पार्किंग में रुकी थी। वो एहाब की किसी भी बात का जवाब दिए बेजान होते गाड़ी से निकली थी। उसके किसी अपने को उसका दुख नजर क्यों नहीं आ रहा था? ईशू, क्या जरूरत थी? एहाब बाई कर दे अंदर, रुला दे, सुबह सुबह पड़ गई ठंड। फा इसको रोता देखकर आवाज़ें लेती, गुस्से से एहाब पर भड़कती उसके पीछे भागी थी। ये सब शायद कभी नहीं ठीक होगा। उनकी अनाओं के बोध कभी मसमार होंगे, कोई एक भी नहीं झुकेगा। एहाब ने दुख से कहा था, सब ठीक हो जाएगा। शायद अभी वक्त इन दोनों के हक में नहीं है। अरसम ने सीट बेल्ट उतारते एहाब को तसल्ली दी थी। मैं इसको तड़पता नहीं देख सकता, मगर अरसम मैं इसके आंसुओं की खातिर अरहम की पाक दमनी को रोन का झूठा गवाह नहीं बन सकता। वो मेरा यार ही नहीं, भाई भी है। एहाब ने बेबसी से कहा था, और हम अपनी बहन के आंसू पूछने के लिए अपने भाइयों जैसे यार को आंसू नहीं दे सकते, इसलिए वक्त पर छोड़ते हैं। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। अरसम ने इसका कंधा थपथपाया था और फिर वो दोनों गाड़ी से बाहर निकले थे। क्या नाम है आपका हस्बैंड का? मेहंदी लगाने वाले ने पूछा था। उसकी मामा ने सुबह में ही मेहंदी लगाने वाले घर पर ही बुलवा ली थी, क्योंकि फिर रात मेहंदी के हंगामे में वो ये सब नहीं चाहती थी। तभी मिंतिया के सुकून के लिए अपनी मेहंदी वाली बुलवा ली थी और उसके हाथों को मेहंदी के फूल बूटों से सजाने लगी थी। क्या नाम लिखना जरूरी है? उसने बुझे दिल से पूछा था। मेहंदी लगाने वाले से जरूरी है। सब दुल्हनें मेहंदी में अपने शोहर का नाम छुपाती हैं ताकि उनके शोहर उनका नाम ढूंढ सके। उसने हाथ पर डिजाइन बनाते कहा था, मगर मैं ऐसा नहीं चाहती, आप ऐसे ही लगा दें। मिंतिया ने हाथों को देखते कहा था, जहाँ डिफरेंट फूलों ने उसके हाथों की लकीरों को छुपा दिया था। क्या आप इस शादी से खुश नहीं? मेहंदी लगाने वाले ने उसकी बात सुनते अजंपे से उसे देखते कहा था। क्या मैं अपने हाथ पर नाम लिखवा लूं तो ये साबित हो जाएगा कि मैं इस शादी से खुश हूँ? मिंतिया ने बेसुरी हंसी हंसते कहा था, नहीं, ये तो सब मैं उनका नाम अपने दिल पर परिंदा करवा चुकी हूँ, अपनी जिंदगी उनको सौंप कर, और मेरे नजदीक ये काफी है। उसने बड़े जिबर से दिल पर पत्थर रखकर ये लफ्ज कहे थे, जबकि न जबान उसके लफ्जों की अक्कासी कर रही थी, न दिल न जज्बात। मेहंदी लगाने वाले ने बस सर हिलाने पर इक्तफा किया था और अपना काम जारी रखा था। तुम्हें क्या हुआ, क्यों रो रही हो? हमना ने उसके पास पहुंचते पूछा था। कुछ नहीं, पाँव मुड़ गया था, इशाल ने बहाना बनाते कहा था। अरसम नहीं आया? जिनाम ने इधर उधर देखते पूछा था। क्या तुम कभी मेरे भाई का पीछा छोड़ सकती हो? फहा ने जिनम की बात सुनते मुंह पर बोरियत सजाते कहा था। फहा, तुम थकती नहीं हो? मेरी बहन से एक ही सवाल करके हमने फहा की तरफ देखते तंजिया कहा था। तो तुम्हारी बहन भी तो नहीं थकती मेरे भाई की राह में बिछते बिछते, जबकि ये जानती है दी अरसम सुल्तान चौधरी की ज्योति की खाक के बराबर भी नहीं है। ये अपनी हाउ कैरी ऑन। तुम्हारी बहन को शौक है वक्त बर्बाद करने का, तो शौक से करे। आई एम गेटिंग लेट, मेरी क्लास है। जीनम की तरफ तल्खी से देखती हमना को अच्छी खासी सुनाकर वो अपना लेक्चर लेने चली गई थी। हेलो गर्ल्स, अरहम ने आन के करीब आते कहा था। हाय अरहम, लगता है रात का नशा अभी तक नहीं उतरा। हमना ने उसके नींद से बोझल आंखों को देखते कहा था। हाय मत पूछो, क्या जवान रात, दिल चाह रहा था कभी सुबह ही न हो उस नरम गरम रात की। अरहम ने इशार की तरफ देखते हसरत से अंगड़ाई लेते कहा था और फिर कहका लगाया था। वो जो इधर उधर देखती उसे इग्नोर कर रही थी, उसकी बात पर अंदर तक सुलगी थी। वैसे आज तो जरूरत से ज्यादा चहल पहल लग रही है यूनि में। न्यू बैच आया है क्या? आराम ने सीरियस सुनते पूछा था। हाँ, तुम्हारी इंटरटेनमेंट आई है, जीनम कहकर लगाकर हंसी थी। ईशा का दिल चाहता इन दोनों तितलियों का मुंह तोड़ दे। आराम की बात को हवा देकर वो जानबूझकर उसे सुलगाती थी। वो किसी रोमियो की औलाद, चल इधर क्लास है। यार ने आराम की बात सुनते उस तक पहुंचते उससे कहा था, वो तुझे नहीं पता नया नया बैच आया है, न्यू कमर है सब, और क्या तितलियां हैं, एक से बढ़कर एक।
नीले पीले हरे काले परों वाली। आराम ने दिल पर हाथ रखते कहा था, ये जो अपनी 1.5 फुट थर्ड क्लास थर्केंस है उसका लेवल बढ़ा ले गद्दे। अरसम ने पीछे से आकर पंच मारा था। उसको कहने का कोई फायदा नहीं, मुझे लगता है ये कभी भी एक बीवी पर इक्तिफा नहीं करेगा। हमला ने हंसते हुए इशार की तरफ देखते कहा था, हाँ पर 4 को संभाल लूंगा कैसे? अरहम ने हमला को आंख मारते हुए कहा था, साले एक फंसी नहीं 4 के ख्वाब देख रहा सस्ते दलीप कुमार। इहाब ने फिर से उसकी शान में कसीदा पड़ा था, अरसम हैकिंग के प्रोग्राम सेट हो जाए तो इन्फॉर्म कर देना, मैं क्लास लेने जा रही हूँ। अरहम के आने के बाद सारे टाइम में इशाल अब बोली थी, ओ हेलो किधर? इन सब बिगाड़तों को मैंने अपनी लाइव परफॉर्मेंस दिखानी है, रुको तुम भी। अरहम ने इशाल का हाथ पकड़ते हुए कहा था, इहाब मैं इसका सर फाड़ दूंगी, उससे बोले अपनी घटिया परफॉर्मेंस की दावत मुझे ना दिया करे। इशाल ने दांत कुछ कुचाते हुए इहाब को देखते कहा था और अरहम के हाथ से अपना हाथ छुड़ाना चाहा था। सीधे कहो कि हिम्मत नहीं है इस दर्द को बर्दाश्त करने की। इशाल रंधावा उसके पास जोकर कान में सरगोश की थी। अरहम ने जो बमुश्किल उस तक ही पहुंची, कलाई पर वहशी गिरफ्त से जान हल्कान हुई थी नाजुक चिड़िया की। छोड़ दे यार, ये बम की तरह फटेगी, फिर घर जाकर मामा को तेरे ठरक के किस्से सुनाएगी रोते हुए। इहाब ने हाथ के इशारे से उसको जानने देने का इशारा करते कहा था। उसने कलाई छोड़ी थी, छोड़ी क्या झटकी थी, लम्स जुदा हुआ था उसका अपने हाथ से, तो आंखों में आंसू भरे थे उसके, मगर दिखाए बगैर वहां से चल दी थी। वो तलखी से मुस्कुराया था, उसकी सांस की भी होश होती थी, पूजा की उसकी तरफ से बेखबर रहता। सो गाइस वॉच मी इहाब। अरसम हमला और ज़ैनब को आंख मारता वो दूर से आती लड़की को देखते बोला था, हेलो मैम कैन आई फॉलो यू? उसने खूबसूरत ग्रीन सूट में आती लड़की के पास से गुजरने पर कहा था, बट वाई? लड़की ने रुकते तजस्सुस से कहा था, बिकॉज माई मामा से अपने ड्रीम को फॉलो करो एंड यू लुक लाइक जस्ट माई ड्रीम गर्ल। हंसते हुए कहा था, रियली? हा। लड़की हंसते हुए पास से गुजर गई थी। इसकी बात सुनकर पीछे बाकी सब की बत्ती से निकली थी। इसकी करतूत देखकर वो सब एंजॉय कर रहे थे। एक्सक्यूज मी मैम, क्या आपका नाम जलजला है? और हमने एक और पास गुजरती लड़की से कहा था, नहीं क्यों? फट से जवाब दिया था लड़की ने रुकते हुए, क्योंकि आपको देखकर मेरे दिल में हलचल मच गई। दैट्स व्हाई आई थिंक योर नेम इज अर्थक्वेक। उसने दिल पर हाथ रखते खूबसूरत स्माइल चेहरे पर सजाते कहा था, पागल। कहते ही वो लड़की भी हंसते हुए पास से गुजर गई थी। पागल तो हो गया आपकी खूबसूरती देखकर, उसने पीछे से हाँक लगाई थी और वो लड़की इग्नोर करती आगे बढ़ गई थी। और कौन सी खूबसूरती चाइनीज लग रही थी वो। या आपने मुक्का मारा था उसकी कमर पर। हमला और ज़ैनब का हंस हंस के बुरा हाल था, जबकि अरसम उसके ठरकपन के कीड़े के सुनने के वेट कर रहा था। वो अलग बात है, वो चेहरे पर बेजारी सजाए उसकी हर हरकत से महसूस हो रहा था, क्योंकि एक वही तो था इन सब के ग्रुप की शरारती सी जान। एक्सक्यूज मी मिस, रुके जरा। एक और पास से गुजरती लड़की को रोका था अपनी जान लेवा हंस से। बस वो रुकी थी। क्या आपको पता है इस टाइम सबसे हसीन चीज कौन सी है? हाथों से इशारा करते पूछा था। नहीं, उसने सोचते हुए जवाब दिया था, मेरी आंखें। उसको आंख में करते कहा था संजीदगी से। अच्छा वो कैसे? वो लड़की उसकी आंखें देखती हंसी थी। बाकी उसकी आंखें खूबसूरत थी। लड़की ने दिल में दाद दी थी इन खूबसूरत आंखों की कशिश को, क्योंकि इस टाइम आप जैसी खूबसूरत लड़की को जो ये आंखें देख रही हैं, लहजे में प्यार समझते कहा था। और पिलर के पीछे छुपी कब से वो सब देखते इशाल अंदाज की आंखें भीगी थी। हा रियली इट्स टू मच। वो हंसते हुए आगे बढ़ गई थी। कोई क्यों लड़के को आसमान पर चढ़ा रहा है? ये ड्रामा बंद कर, क्लास का टाइम हो रहा है। इहाब ने गर्दन से दबोचे तो उसे फजूल गोई से मना करते कहा था, वो चलना, वो इधर लड़की खड़ी है उसके पास चलते हैं। वो इन दोनों को खींचते लाया था जहाँ वो लड़की पोस्ट किए खड़ी थी। एक्सक्यूज मी, और हमने पुकारा था, जबकि अरसम, इहाब, हमना और ज़ैनब उसके पीछे ही खड़े हुए थे। और हमसे 2 कदम के फासले पर हाथ बांधे वो जो हाथ में एक पजल बॉक्स पकड़े इसको टंग ट्विस्ट करते रोती जा रही थी। पीछे मुड़कर देखा था और 2 लड़के को अपने पीछे खड़े देखकर सीटी गुम हुई थी इसकी। अरसम तो देखते ही आंख झपकना भूल गया था। लाइट लेमन कलर के शेफोन के सूट में नाजुक सा चमकता वजूद, गंदी लंबी खाम खाती पलके, बड़ी बड़ी आंखें, कांच जैसा नाजुक बेदाग चमकता चेहरा, किसी भी मेकअप से पाक, लंबे बाल कमर से भी नीचे जा रहे थे, एक बराबर कटे हुए, कानों में हीरे के छोटे छोटे चमकते टॉपिक्स और कांध पर ब्लैक शाल, जबकि हाथों में भर भर कर ब्लैक चूड़ियां थी। दुपट्टे के हले में गर्दन पर ऊपर हुआ काला तेल बेदाग गर्दन का मुहाफिज बना बैठा था। यूं कहा जाए कि कोई शीशे की नाजुक गुड़िया सामने थी तो बजा होगा।
आप रो क्यों रही हैं? आराम को उसकी आंखों में आंसू पसंद नहीं आते। बने ही नहीं थे इसके लिए। मैंने कुछ नहीं कहा किया, वो ऐसे ही यहाँ लेकर आए मुझे, जोश से रोते हुए कहा था। इकट्ठे 5 लोग अपने सामने देखकर उसकी सिटी गुम हुई थी। वो हमने भी तुझे नहीं दिया। बेबी का फिडल कहाँ है? जिन्हों ने उसके करीब खड़े होते, उसकी तोड़ी पकड़ते, उसको बच्चों की तरह ट्रीट करते कहा था। और आखिर में इन 5 को कहकर बुलंद हुआ था, मी हैसी। वो उसका हाथ अपनी तोड़ी से हटाकर बोली थी और भागने लगी थी। जब आगे कदम बढ़ाते अरसम से उसका कंधा टकराया था और हाथ में पकड़ा पजल बॉक्स उससे नीचे गिरा था, जिस पर अरसम ने पाँव रखा था। प्लीज लीव इट माई बाबा, गो टू मी प्लीज। उसने नीचे बैठते उसके पाँव से पजल बॉक्स निकलते हल्का होते कहा था, तुम लोग जाओ यहाँ से। इन सब को जाने को कहा था अरसम ने। वो सब उसकी बात सुनकर वहां से मुंह करते वापस लौटे थे। ये तो गई आज, हमला ने पीछे मुड़कर देखते कहा था। जहां वो झुककर उसको बस से पकड़ रहा था, फिर उसे उठाया था और साथ ही दूसरे हाथ में पजल बॉक्स पकड़ा था। उसके आंसू और कांपता जिस्म, अरसम बेचैन हुआ था उसकी हालत पर। वहां से हाथ से खींचता हुआ उसे ऑडिटोरियम की पिछली साइड ले जा रहा था। मेरी समझ से बाहर इस पर कौन सा खून सवार हो जाता है? ये आपने गुस्से से कहा था, ये साइको, किसी के भी हाथ में पजल बॉक्स होगा तो वो ऐसे ही रिएक्ट करेगा। अरम को तप चढ़ी थी। शो खत्म हुआ था, वो पल में हैवान बना था और वो सब गुस्से से क्लास में जाने लगे थे। मैं आराम खामोशी से पिछले पिलर की तरफ पहुंचा था, जहां इशाल खड़ी कब से उस तमाशे को देखती आंसू बहा रही थी। क्या हुआ इशाल? आराम तारे को दर्द हो रहा है, दिल में चुभन हो रही है, बेकरारियां झंझोड़ रही हैं। उसने उसके बिल्कुल पीछे खड़े थे उसके कान के पास लाभलाते कहा था। उसकी सांसों की तपश से पिलर को पकड़ा हाथ उसका यकदम लर्जा था। पीछे मुड़ती तो उसके चौड़े सीने में सिमा जाती। बुरे दोबारा उसकी नजदीकी की सराहत को मिटाते उसे आगे कदम बढ़ाया था। वो भी ढीठ बना उसके साथ चलने लगा था। उसके साथ जड़कर चलते चलते उसके हाथ की उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसाई थी। उसने हाथ छोड़ना चाहा था, मगर उंगलियों पर उसके हाथों की पकड़ मजबूत थी। जहर है वो मर्द था और वो नाजुक जान। क्या चाहते हो इरहाम? वो दांत पिसते हुए अपने हाथ को उसके हाथ की उंगली में मुकीद देखते बोली थी। यहाँ से शुरू और कभी ना खत्म। उससे गुलाबी लिप ग्लूस से रंगे होंठों को इशारे से देखते गंभीर लहजे में उसके चेहरे के पास झुककर कहा था, आपने नहीं तो मेरी इज्जत का ख्याल कर लो। राह चलते कितनी नजर को मुझ पर बद किरदारी के लिए उठाओगे? उसने फंकारते हुए कहा था। गुस्से से नाक फुली थी और मासूम रुखसार भी। चलो तुम्हें इस बात का तो एहसास हुआ कि बद किरदार से गुजरना कितना तकलीफ दे है। उसने दूसरे हाथ उसके कंधे पर रखते उसको कदम बढ़ाने पर मजबूर करते उसके साथ चलते कहा था। रास्ते में से गुजरते कितने लोगों की नजरों में वो आए थे। उनकी नजरों का सवाल इशाल का उसके घेरे में चलना। अगर तुम चाहते हो आराम, मैं तुम्हें थप्पड़ मारूं तो दफा हो जाओ। जान छोड़ क्यों नहीं तुम मेरी? जाओ, जहां मुंह मारना है मारो, जहां अय्याशी करनी है करो। जब मैं तुम्हें आजाद कर चुकी तो तुम मुझे आजादी क्यों नहीं दे बख्श दे? निकाह करो उस रुमान से और मुझे आजाद करो। उसने बुलाते हुए कहा था और झटके से अपने कांधे से उसका हाथ हटाया था, मगर उसकी उंगली में फंसा अपना हाथ आप बिना छुआ पाई थी। तुम्हें आजादी तो मेरी मौत के बाद ही मिल सकती है, या खुद मर जाओ या मुझे मार दो। और हम तारे किसी के लिए तुम्हें छोड़ेगा नहीं और खुद तुम्हारे अलावा हर किसी के लिए अवेलेबल होगा। वो उसे पिछले पूरज की तरफ चलता चलता ले गया था और वही उसका जिबड़ा बच्चे उसकी आंखों में आंखें डाले उसके लफ्जों का जहर उसके मुंह पर मार रहा था। तुम्हें क्या लगता है मुझे फर्क पड़ेगा इस सब से कि तुम मेरे अलावा सबके लिए मुयस्सर हो? आराम तारिक, अपनी खुशगुमानी के दायरे को तोड़कर निकलो बाहर। तुम्हारा मेरी जिंदगी में होना ना होना मेरे लिए रत्ती भर भी अहम नहीं है। तुम इस गुजरती हवा के जुल्स्त झोंके की तरह हो जो मेरे लिए तकलीफ से बढ़कर कुछ भी नहीं, जिसे ना तो मैं महसूस करना चाहती हूँ और ना ही खुद को छूने का भी हक देना चाहती हूँ। वो दांत कुचकाकर गुस्से से बोलती तलखी की सारी हदें पार कर गए थे। कुछ था जो क्षण से टूटा था आराम के अंदर। उसकी भीगी पलकों की बाढ़ में एक मुतमस्सिल दर्द था, फिराक का दर्द। उसका लहजा काटदार था। तब उसने उसकी दोनों कलाइयों को जकड़ते उसकी कमर के पीछे मरोड़ा था। हाँ हाँ, पता है इशाल रंधावा, तुम्हारे लफ्ज तुम्हारी हालत का साथ नहीं देते ना। तुम्हारे धड़कते दिल का शोर जो मुझे यहाँ तक सुनाई दे रहा है मेरी कुर्बत की वजह से। हाँ, मगर तुम में ये मल्टी टैलेंट है कि तुम अपने अंदर पलते खौफ से जंग लड़ रही हो, यहाँ किए बगैर। उसकी हल्की नमी से भरी आंखों को देखते उसने उसका तमस्का उड़ाते कहा था, मुझे किसी चीज का खौफ नहीं है। उसने अपनी कलाइयों को छुड़वाते बेबसी से कहा था,
آئینہ صاف دکھ رہا ہے۔ یہ خوف اس سرد جنگ کا میں کہیں اختتام نہ کر دوں، کہیں تمہیں چھوڑ نہ دوں، کہیں تمہارے راستے فراموش نہ کر دوں۔ سوچو اگر میں نے ایسا کیا تو، اگر میں خود ہی پیچھے ہٹ گیا تو۔ گہری نظروں سے اس کی گردن پر بنے اوپر نیچے 3 تیلوں کو دیکھتے اس نے اس کی ناک کے پاس 1 انچ کے فاصلے پر ہو کر ایک گہرا سانس چھوڑا تھا۔ اس نے گھبرا کر آنکھیں بند کی تھیں اور اپنا سانس بھی۔ اس کی سانس کی تپش نے اس کی کمر کی ہڈی میں سرسراہٹ جگا دی تھی۔ جسم کا رواں رواں کانپ گیا تھا۔ وہ ہمیشہ ایسا ہی کرتا تھا، اپنی قربت کا جان لیوا حصار کھینچ کر اس کے حواس طلب کرتا تھا اور پھر اس کو کسی ڈور کی طرح کھینچتا تھا۔ ٹیک بریتھ ڈیئر وائف، اس سانس کے راز کو اپنے سانس کے ساتھ کھینچ کر اپنے جسم میں جذب کر کے اپنا ہمراز بنا لو۔ سمجھنا آرام ترک رفتہ رفتہ تم میں جذب ہو رہا ہے اور یہ میری طرف سے خراج ہے تمہاری بھونڈی محبت کے خاتمے کی فتح کا۔ اس نے پرتپش لہجے میں پھر سے گمبھیر سانس لیتے، اس کے کان کے پاس جھکتے، اس کے حواسوں کو مزید سلب کرتے کہا تھا۔ دفتر اس نے بد حواس ہوتے اپنے درگوں کے تال میل سے بے سور ہوتے اس کے کانتے کے ساتھ ساتھ ٹکا دیا تھا۔ وہ بے جان ہوئی تھی، دل اور جسم کسی زلزلے کی طرح لرزے تھے اس کے تلسماتی لمس پر۔ پلیز ارحم، لیو می، آئی کانٹ ہینڈل۔ لڑکھڑتے لہجے میں دبدبی سسکی برتے ہوئے سسکتی بہتے آنسو سے اس کے کاندھے پر اپنے آنسو بہا گئی تھی اور وہ آنسو اس کے شارٹ میں جذب ہوئے تھے۔ ایشو، اس کے سسکنے اور اس کے تھکے لہجے اور اس کی بھرائی آواز پر وہ پریشان ہوا تھا۔ مچل کر بے قراری سے اس کا نام پکارا تھا۔ کلیوں پر گرفت نرم پڑی تھی اور یہی موقع دیکھتے وہ اس کو پرے کرتے روتی ہوئی وہاں سے چلی گئی تھی۔ اس کی اصلاح روکے جانے پر وہ گہرا سانس بھرتے مڑ گیا تھا۔ شاید محبت کی بے توجہی اس کے مقدر کا ہمیشہ ستارہ رہنے والی تھی۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ پلیز چھوڑیں۔ ارسم کے ہاتھ کی سختی پر وہ روتی ہوئی لڑکھڑاتے اس کے ساتھ کھینچتے جاتے ہوئے التجا کر رہی تھی۔ کب سے ہے یہ تمہارے پاس؟ اس نے اسے آڈیٹوریم کے وائرنس میں لاتے دیوار کے ساتھ پن کرتے کہا تھا۔ پلیز، خود کو دیوار کے ساتھ پن ہوتا دیکھ کر ایک اجمی کو اپنے پر جھکا دے کر اس کی جان لبوں پر آئی تھی۔ بری طرح جسم کانپنے لگا تھا۔ ایک آفا سے جان نہیں چھٹی تھی کہ دوسری اس کے سامنے کھڑی تھی۔ سامنے کھڑا لمبا چوڑا شخص جس کی آنکھوں میں غصہ اور اشتعال تھا جبکہ اس کے ہاتھ میں اس کا پزل باکس تھا۔ کب سے ہے یہ تمہارے پاس؟ اس کی موٹی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر روحدار لہجے میں بولا تھا۔ کیا اس نے برائی آنکھوں سے اس خوبصورت جین کی طرف دیکھا تھا جس کی پرسنالٹی رو میں ایک الگ ہی ٹھاٹھ میں تھا؟ کاندھے پر بیگ لٹکائے، بلو جین پر بلیک ہوڈی پہنے، ہوڈی کے بازوں کو تھوڑا اوپر چڑھائے، بالوں کو ماتھے پر گرائے، شعلہ بار نگاہوں اپنی تند و تیز آواز سے اسے کا اچھا خاصا ڈرا رہا تھا۔ یہ پزل باکس، اور اب تم بتاتے ہو ہوئے اٹکی تو گلا دبا دوں گا تمہارا۔ اس کی آنکھوں میں خون کھول رہا تھا۔ دفتر اس کی نازک گردن کو دبوچتے کراتے ہوئے کہا تھا۔ وہ بری طرح کرا گئی تھی۔ رات کا زکام پھر سے مضبوط گرفت اسے لگا اس کی گردن کی جلد اتر گئی ہے۔ آنسو میں اضافہ ہوا تھا۔ جی، جب میں 4 سال کی تھی بابا نے دیا تھا۔ اس نے شدت سے آنکھیں بند کرتے سسکے لیتے کہا تھا اور اس کے ہر اٹکتے لفظ کے ساتھ اپنے ہاتھ کی گرفت مزید مضبوط کرتا جا رہا تھا اس کی گردن پر۔ اسے غصہ آ رہا تھا اس کے اٹکنے پر۔ باپ کا نام کیا ہے تمہارے؟ اس نے اگلا سوال لگا تھا گردن چھوڑے بغیر۔ ولید خان۔ اس کے اٹکنے پر ماتھے پر پھر سے بال لگتے اس نام کو مکمل کرتے داڑا تھا۔ وہ سر ہلا گئی تھی اور اس کی تصدیق کی بار اس نے اس کی گردن کو مزید دبوچا تھا، اتنا کہ اس کی ٹانگیں بے جان ہوئی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا اسے کھڑے کھڑے یہی مار دے۔ اس کے چہرے کی رگیں نیلی ہوتی دیکھ کر، اس کی بہہ کو ابلتی آنکھیں دیکھ کر، تکلیف اس کے چہرے پر دیکھ کر بے سکون ہوا تھا۔ جبکہ یہی وہ لمحہ تھا جب اسے سکون ملنا چاہیے تھا اپنے باپ کی قاتل کی بیٹی کو تکلیف میں دیکھ کر۔ نہ جانے کیا ہوا کہ وہ گرفت نرم کر گیا اور ہاتھ اس کی گردن سے ہٹا گیا۔ اس کی شال اس کے کندھوں سے نیچے گری اور گلے میں لیا دوپٹہ بھی۔ وہ بری طرح سے گردن پر ہاتھ رکھ کے کھانسنے لگی تھی، لمبے لمبے سانس لینے لگی تھی۔ اسے سانس لینے میں مشکل ہو رہی تھی، گلابی ہونٹ نیلے ہونے لگے تھے۔ یہ نشان یہ ابھی کے ہیں؟ کیا میرے پکڑنے کی وجہ سے ہوا؟ یہ دکھاؤ۔ اس کی گردن پر گہرے نیلے انگلیوں کے نشان دیکھ کر وہ پریشان ہوتا، اس کے ہاتھ کو پیچھے کرتا، اس کی گردن دیکھنے لگا تھا۔ پھر اس کی گردن کے کاٹ پر لکھا بی دیکھ کر اس کو شاک لگا تھا، جو خرچ کر لکھا گیا تھا کسی چیز سے، اور اس کے گرد جمع خون۔ اس نے آگے سے کوئی جواب نہیں دیا تھا، بس کھانستے ہوئے اپنی شال ٹھیک کرنے لگی تھی۔ اس کا ڈر، اس کا رویہ ارسم کی سمجھ سے باہر تھا۔ پھر اس کا ایسے ایکٹ کرنا، اس نے نفی میں گردن ہلائی تھی
तिल तिल मरने के लिए तैयार रहना। अपनी जिंदगी के 20 साल मैंने तुम्हारे इस पजल बॉक्स और तुम्हारे बाप को ढूंढने में लगाए हैं, अब मजीद नहीं। उसकी दिग्गरगुन हालत देखकर मुतबस्सिम सा मुस्कुराता वो अपना दिल को सुकून पहुंचा रहा था और फिर जाने के लिए मुड़ा था। नहीं नहीं, उसने उसका जाते का हाथ मजबूती से पकड़ा था, जबकि फटी फटी आंखों से सामने देख रही थी जहाँ अरसम इसकी पुष्ट पर बीरबल खड़ा था। मास्क पहने सब्ज आंखें, उस पर गाढ़े गुस्से से तेवरी चढ़ाए उसकी जान फना हुई थी। हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी अरसम सुल्तान चौधरी को हाथ लगाने की? अपने वजूद और इन कंधों को दूर रखो मुझसे। वो उसकी तरफ मुड़ा था और गुस्से से गुर्राया था। अपनी रूपदार आवाज में वो कांप कर रह गई थी। नहीं, प्लीज मुझे बचा लें, मुझे छोड़कर मत जाएं। शट अप। जाम एक्सप्रेस करके मुझे मजीद गुस्सा मत दिलाओ। वो उसका हाथ अपनी कलाई से हटाते तैश में फूंका रहा था। उसे गुस्सा ऐसा जब से मिली थी, मजाल है जो एक भी लफ्ज उसने पूरा बोला हो। सामने खड़े बीरबल ने एक हाथ ऊपर उठाते 2 उंगलियों का इशारा करते जोशा को कहा था कि वो उस लड़के को भेजे वहां से। उसको इशारा करते देखकर उसने फिर से आगे बढ़कर पहले से ज्यादा मजबूती से उसका हाथ पकड़ा था और उसकी बाजू को भी गिरफ्त में लिया था। अपने कांपते हाथ से ब्लडी डफर अपने हाथ पर से फिर से उसका लमस महसूस करते अरसम मुड़ाया था और उतने जोर से अपना हाथ और बाजू छुड़वाकर उसे धक्का दिया था कि वो नीचे गिरी तो इसका पजल बॉक्स लेकर चला गया था। उससे पहले कि वो संपर्क उठाते 10 कदमों का फासला 4 कदमों तय करता बीरबल उस तक पहुंचा था और उसके सामने खूंखार हालत में गोलियां फेंकी थी और फिर उसके इर्द गिर्द कहकल गाते चक्कर काटने लगा था। अगली किस्त में होगा एक बड़ा धमाका। आर यू गाइज रेडी फॉर इट? आप जान पाएंगे मोमिन और फरी का सच। एक और पजल, क्या बीरबल से खुद को बचा पाएगी जोशा या वहीं से गायब हो जाएगी और हैसम ढूंढता रह जाएगा उसे? तब तक लाइक और सब्सक्राइब करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स दें। खुश रहें, सलामत रहें।